Namaste students, welcome back to my channel. Students, in our previous video, we have studied the different rules with the help of which we can write the name of the coordination compounds. So आज हम वीडियो में different examples लेंगे and उन examples में उन rules को apply करेंगे and we will write the name of the different examples of the coordination compounds. So let's begin. So here are different types of complexes. Look, in first complex, the complex part is cation and the ionizable part is anion. जो complex part है वो हमारा cation है और जो ionizable part है that is our anion. In second, complex part is cation, ionizable part is anion, but different क्या है? In this, the metal atom is surrounded by only one ligand. In this, the metal atom is surrounded by different ligand. क्लियर. थर्ड, इट इज एन आयनिक कॉम्प्लेक्स. ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ आयनाइजेबल पोर्शन नहीं है. नेक्स्ट, फर्स्ट इट इज एनायन मींस आयनाइजेबल पार्ट इज कैटायन एंड द कॉम्प्लेक्स इज एनायन. कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा क्या है? एनायन है. इन नेक्स्ट it is cation, it is anion, but in both the case the metal is same, iron and iron, and here 4 is there, 3 is there, so it is also a different example. In this, both of these are complexes, means cation and anion are complexes. In this, cation and anion both are complexes. So सारे के सारे examples different है और हम different examples में पढ़ेंगे कि कैसे हम naming लिख सकते हैं. So first we will start with the first. First हमारा क्या है? The first compound is CONH3 whole 6 Cl3. Now in that video I gave you a trick कि आप हमेशा कहाँ से start करो? From the left side. Means you have to write the name from the left side whether it is complex or it is not. So मैंने नाम यहाँ से लिखना start करना है. Second thing, what I have to kept in our mind that जो naming होगी, जो name start होगा वो small alphabet से होगा and complex का जो name होगा that should be a single name. वो हमारा एक single name होगा. Clear? Now while writing the complex जब हम लिखते हैं तो जब भी हम complex को लिखते हैं for complex, it is for complex. So complex को लिखने के लिए पहले हम ligands लिखते हैं and then we are writing the central metal atom. Means formula में first हमारे पास क्या है? Central metal atom and then ligand है. But while writing the name, first we will write the name of the ligand and then we will write the name of the metal atom, central metal atom. So first हम किसका नाम लिखेंगे? Ligand का plus central metal atom. Central metal atom. And in our previous video I also told you that if the complex is cation or neutral, अगर complex cation है और neutral है तो जो central metal atom होगा उसका नाम as it is लिखा जाएगा. And if it is anion then we add ATE and then we write the oxidation state in the parenthesis. Oxidation state लिखेंगे हम parenthesis में and then we will write the ionizable part. हम क्या लिखेंगे उसके बाद? Ionizable part and ionizable part remain as such. जो उसका actual name है वही हम ionizable part का नाम लिखेंगे. Just like in this it is chloride, तो हम chloride ही लिखेंगे. Clear? So इसका name लिखते हैं. So first हमारे पास क्या है? Ligand amine. Amine. Now ये amine कितने हैं हमारे पास? 6. And amine is a unidentate ligand. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इफ वी हैव यूनिडेंटेट लिगेंड देन वी यूज डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स. सो हियर वी हैव 6 अमीन. हमारे पास 6 अमीन है. सो फॉर 6 वी यूज प्रीफिक्स हेक्सा. सो इट इज हेक्सा अमीन. मींस हेक्सा अमीन बोथ ए विल कम. ए ऑफ हेक्सा एज वेल एज ए ऑफ अमीन. दोनों ए आएंगे. आप एक ए से काम नहीं चलाओगे वहां पे. हेक्सा का ए और अमीन का ए दोनों ए आएंगे. सो हेक्सा अमीन एंड हियर द स्पेलिंग ऑफ अमीन इज AMMINE. AMINE नहीं है यहाँ पे. दैट इज नॉट अमाइन, इट इज अमीन. सो हेक्सा अमीन
hexaamine, then cobalt, hexaamine, cobalt, hexaamine, cobalt, then the oxidation state, फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन क्लोराइड, क्लोराइड. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये आयनाइज करके क्या देगा? CONH3 होल 6 3 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव, यही देगा. बिकॉज ये आयनाइज होके 3 Cl नेगेटिव देगा एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसका अगर चार्ज 3 नेगेटिव है तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए? 3 पॉजिटिव. सो इट बिकम्स 3 नेगेटिव, हियर इट इज 3 पॉजिटिव. नाउ इन दिस लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बी X. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट X मान लो. NH3 हमारा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, बिकॉज NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. सो इट बिकम्स 6 into 0 plus is equals to how much charge? 3. So 6 into 0, that is equals to 0. So X equals to 3. So the oxidation state, जो oxidation state आ जाएगा, that is 3. So in this way you calculate the oxidation state. So the name of CONH3 whole 6 Cl3 is hexaamine cobalt 3 chloride. This much is clear, beta? Okay. Now we'll move to our next complex. Our next complex is COCl2 En whole 2 SO4. क्लियर? सो फॉर्म रूल तो वही अप्लाई होगा. फर्स्ट हम लिगेंड लिखेंगे, देन हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, देन ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर इज नो चेंज इन द सेंट्रल मेटल एटम क्योंकि ये हमारा कैटायन होगा, कैटायन फिर एनायन. तो ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है. तो देयर इज नो चेंज इन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट इज सल्फेट. क्लियर? बट यहाँ पे हमारे पास 2 लिगेंड्स है. सो वील अरेंज दीज लिगेंड्स अल्फाबेटिकली. हम इन लिगेंड्स को क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. फर्स्ट इज क्लोरिडो. ये हमारा क्या है? क्लोरिडो. क्लियर? हमने पढ़ा था इफ द लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स व्हिच एंड एट IDE, ITE एंड ATE, उसमें से हम E को O से रिप्लेस कर देंगे. सो इट इज क्लोराइड, सो इट बिकम्स क्लोरिडो. And second is ethane 1,2-diamine or ethylene diamine. So it start from C, it start from E, not in the symbol, in the name. I am talking about in the name. So ethylene, ethane 1,2-diamine, and here it is chlorido. So पहले क्या लिखा जाएगा? क्लोरिडो, और फिर क्या लिखा जाएगा हमारा? ethane 1,2-diamine. So the name, यहाँ पे जो नेम आ जाएगा that is, first हम लिखेंगे क्लोरिडो, और क्लोरिडो हमारे पास कितने हैं? 2. सो इट इज डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो. इथेन डायमीन भी हमारे पास, इथेन 1,2-डायमीन भी हमारे पास कितने हैं? 2. बट इथेन 1,2-डायमीन हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड है, एंड फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड वी डोंट यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई. हम क्या यूज करते हैं? बिस, ट्रिस, ट्रेटाकिस. सो हियर इट इज 2. सो फॉर 2 इट इज base, it is base. Then polydentate ligands को हम किस में लिखते हैं? in the bracket. So it is ethane 1,2-diamine, bracket close. Clear? Then cobalt, cobalt, then इसका क्या आएगा? oxidation state and sulfate. Clear? Now we have to calculate the oxidation state. Look beta, when it ionizes, जब ये आयनाइज होगा, SO4 क्या आयन बनाता है? We know SO4 2 नेगेटिव. सो इसके ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट होगा? 2 पॉजिटिव. इट इज COCl2 En whole 2 पॉजिटिव. क्लियर? नाउ दिस इथेन 1,2-डायमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड. ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, एंड Cl कैरी 1 नेगेटिव चार्ज. So X plus 2 minus 1 plus 2 0 is equals to plus 2. Clear? ये कितना आ जाएगा? plus 2. So here it is
-2 वहां जाके क्या हो जाएगा +2 एंड इट बिकम्स +4. So the oxidation state of cobalt in this case is +4. Clear beta? This thing is clear? ठीक है. So dichlorido bis ethane 1,2-diamine cobalt 4 sulfate. ये हमारा नाम. Now next one is COCl En whole twice ONO positive. ONO क्या है यहाँ पे? ONO is ambidentate ligand. ONO is ambidentate ligand. Actually, it is NO2 negative. NO2 negative, which is an ambidentate ligand, which can donate through N as well as through O. लेकिन यहाँ पे वो किससे डोनेट कर रहा है? O से डोनेट कर रहा है. Clear? So the name. अब इसके केस में देखिए, we have 3 ligands. हमारे पास 3 ligands है. One is chlorido starting from C, another is ethane 1,2-diamine starting from E, and it is nitrito. It is nitrito because NO2 negative is nitrite ion and nitrite means end with E, तो वहां पे हम O replace करेंगे, it becomes nitrito. So nitrito, so CEN, तो अरेंज हम इसी बेसिस पे करेंगे, फर्स्ट C then E then N, अल्फाबेटिकली, क्योंकि C पहले आता है फिर E फिर N. सो द नेम, यहाँ पे जो नेम आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोरिडो. वाई क्लोरिडो? बिकॉज Cl is only one. Bis ethane 1,2-diamine, then nitrito O. नाइट्रेटो O क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट जो नाइट्राइट यहाँ पे लिंक्ड हुआ है वो लिंक किससे हुआ है? थ्रू दी ऑक्सीजन. कोबाल्ट then oxidation state, and then you have to write ion. Why ion? Because यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. इट इज नॉट कि पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट आयन हियर. नो, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तब भी आप आयन मेंशन करते. सो व्हेनेवर द कॉम्प्लेक्स कंटेन चार्ज, तो हम वहां पे क्या करेंगे? एट द एंड वी मेंशन द टर्म आयन. हम आयन को मेंशन करेंगे. क्लियर? नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है. इन दिस x प्लस -1, क्योंकि Cl हमारे पास 1 है तो -1. इथेन डायमीन कितने हैं? 2, बट ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0. NO2 नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? -1, दैट इज इक्वल्स टू +1. सो -1 -2 वहां जाएगा, इट बिकम्स +2 + 1 कितना हो जाएगा? 3. सो x इक्वल्स टू +3. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ जाएगी? 3. दिस थिंग इज क्लियर बेटा? Any doubt in this? Now we'll move to our next exam. So these 3 are done. ये 3 done हो गए. Now we'll move to our fourth one. And the fourth one है क्या हमारा? KPTNH3Cl3. ठीक है. So starting हमने लेफ्ट से ही करनी है. And because जो पहले लिखा जाता है that is cation, तो here it is cation and the complex is anion. Complex हमारा यहाँ पे anion. Clear? Now if the anion is complex, rule वही रहेगा जो हमने cationic complexes में पढ़ा है. First we'll write the ligand, then we'll write the central metal atom and the oxidation state. But यहाँ पे जो central metal atom होगा उसके नाम के पीछे आपका क्या attached हो जाएगा? ATE. Means if it is platinum, it becomes platinate. ये platinum नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? platinate हो जाएगा. क्लियर? सो यहाँ पे जो इसका नाम आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे? आयनाइजेबल पार्ट. सो आयनाइजेबल पार्ट क्योंकि जो है ये वैसा ही नाम है इसका रहेगा. सो इट इज पोटेशियम. Here P is not capital. Potassium. Then I write the name of the complex. अब complex का नाम लिखने से पहले मैं क्या लिखूंगी? Ligands.
आई हैव टू लिगेंड्स, वन इज अमीन, अनदर वन इज क्लोरिडो. सो पहले अमीन लिखेंगे फिर क्लोरिडो. सो अमीन ट्राई क्लोरिडो. ट्राई क्लोरिडो क्यों आया बेटा? बिकॉज हेयर आई हैव 3 क्लोरीन. सो अमीन ट्राई क्लोरिडो प्लैटिनेट. Because here I have no space there, therefore I have write platinate here, but it doesn't mean कि ये दोनों अलग अलग नेम है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नाम एक सिंगल एंटिटी होगी. कॉम्प्लेक्स शुड बी अ सिंगल एंटिटी. सो ये एक ही नेम है. क्लियर? सो पोटेशियम, देन another name amine trichlorido platinate and the oxidation state. Clear? Now I have to calculate the oxidation state. When it ionizes, it gives K positive and Pt NH3 Cl3 negative. Clear? So अब इससे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x plus 0 plus 3 into minus 1, that is equals to minus 1. So x minus 3 is equals to minus 1 and x equals to plus 2. So here the oxidation state is क्लियर बेटा. सो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे क्या आया, पहले हमने आयनाइजेबल पार्ट का नाम लिखा एंड देन जब हमने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा, इन दैट कॉम्प्लेक्स जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इन दैट वी ऐड ATE. ये यहाँ पे सिर्फ चेंज है. नाउ नेक्स्ट वन इज Fe4 FeCN6 3. Clear? Now here 4 is here and 3 is here. ये अभी तक किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं था. Now ये 4 और ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? That when it ionizes, here it form Fe3 positive and it form FeCN6 4 negative. Clear? जो हम चार्ज फॉर्मूला हम लिखना सीखते हैं इन आवर जूनियर क्लासेस, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला लिखा है. दैट इसका जो चार्ज है इट गोज हेयर एंड द चार्ज ऑफ Fe कम्स हेयर. क्लियर? सो Fe3 पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव. नाउ इट इज Fe3 पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे इसे आयरन नहीं लिखोगे बेटा. क्लियर? क्यों आयरन नहीं लिखोगे? बिकॉज आयरन इज Fe. क्लियर? बट ये Fe3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप इसका नाम क्या लिखेंगे? जो इसका एक्चुअल नेम है. एंड व्हाट इज इट्स एक्चुअल नेम? Its actual name is ferric. So the name is ferric. Then hexacyanide. Why cyanido? Because it is cyanide. IDE, तो E रिप्लेस हो जाएगा O से. cyanidoferrate. क्लियर? ATE. अब आयरनेट तो नहीं लिख सकते ना बेटा. So it is ferrate. Then the oxidation state. Now if I want to calculate the oxidation state, x plus 6 into minus 1, that is equals to minus 4, क्योंकि इसका चार्ज -4 है और साइनाइड है -1. So x minus 6 is equals to -4. So x equals to plus 6 minus 4 कितना हो जाएगा? +2. So here the oxidation state is +2. Oxidation state हमारा कितना हो जाएगा? +2. I hope this thing is clear to you. इतना क्लियर हो बेटा? Okay. Now, if you have this type of question, means cation is complex as well as anion is complex, तो नाम लिखना बहुत इजी है बेटा, बिकॉज नाम हमने इन्हीं रूल्स के बेसिस पे लिखना है. The difficult thing is to find the oxidation state of both the metals. इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है. क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी एंड दैट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. वो पॉइंट्स आपने याद करने. क्लियर? द पॉइंट्स आर, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, देन +3 oxidation state of 3D transition elements.
जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाली जो सीरीज है, अगर वो 6 लिगेंड से लिंक्ड है, क्लियर, इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, मैं इन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ, दिस इज फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस, अगर वो 6 लिगेंड से अटैच्ड हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, क्लियर, एक्सेप्ट दीज, इनके अलावा, यानी 3D ट्रांजिशन सीरीज तो पूरे ही है यहाँ पे, इनके अलावा प्लैटिनम 4 पॉजिटिव, पैलेडियम 4 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 6 पॉजिटिव, क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, एक्सेप्ट दिस इफ प्लैटिनम इज देयर, अगर प्लैटिनम है, जैसे हमारे पास यहाँ प्लैटिनम है और इसके अराउंड कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +4। सिमिलरली पैलेडियम के अराउंड अगर 6 है तो क्या हो जाएगा हमारा, +4, क्लियर। नेक्स्ट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन कब होगा, when the coordination number is either 4 or 6, या तो 4 होगा या फिर हमारा क्या होगा, 6 होगा, क्लियर। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज हमारा 4 है और हमारे जो मेटल्स हैं वो प्लैटिनम, पैलेडियम एंड मर्करी है, क्लियर, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड मर्करी, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड सिल्वर, तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, कब होगा +2, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, यानी प्लैटिनम के अराउंड 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे प्लैटिनम के अराउंड 6 लिगेंड्स थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर 4 बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2, क्लियर। एंड इफ वी हैव जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, अगर हमारे पास क्या है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, और इनमें भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा, +2, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा कितना होगा, +2। एंड इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, कौन कौन से एलिमेंट्स, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +1, तो ये आपने याद रखना है बेटा। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा हमारा, +3, Pd4 पॉजिटिव और Pd4 पॉजिटिव, क्लियर। अगर +2 कब होगा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, वेदर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 और 6, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, मर्करी, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, और प्लस अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, इसका क्या होगा हमारा, +1। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप इन कॉम्प्लेक्सेस के ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। अब फर्स्ट हमारा देखते हैं, जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज PTNH3 Cl2 एंड PtCl4। तो पहले में जो प्लैटिनम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देखिए प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा, एंड दूसरे में प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारा 4 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2 होगा, क्लियर। अब बिकॉज यहाँ पे पहले जो लिखा है वो कैटायन होगा, दूसरा जो लिखा है वो एनायन होगा, तो पहले में हम प्लैटिनम लिखेंगे, दूसरे में हम प्लैटिनेट लिखेंगे, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे द नेम इज टेट्राअमीन डाई
chlorido platinum, dichloridoplatinum, because coordination number 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 4. देन टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2. सिंपल. क्लियर बेटा? सो इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर यू, आई नो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बाय प्रैक्टिसिंग इट बिकम्स वेरी एंड वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो बेटा. जैसे मेरे लिए इजी है आपके लिए भी इजी होगा. नाउ द लास्ट वन, दैट इज AgNH3 whole twice AgCN2. क्लियर? नाउ इन बोथ द केस जो सिल्वर है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2. एंड जब सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 1, यानी दोनों के केस में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रहेगा. नाउ जब हम नाम लिखेंगे तो नाम इसका होगा डाई अमीन सिल्वर. क्यों सिल्वर? बिकॉज पहला हमारा कैटायन है, कैटायन में सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज रहेगा, सो इट इज सिल्वर 1. देन डाई साइनाइडो. नाउ हेयर सिल्वरेट तो नहीं लिखेंगे बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका जो लैटिन वर्ड है सिल्वर का दैट इज अर्जेंटम, so argentate. So it is dicyanide argentate, then in square bracket it is also 1. Clear? So in this way we can write the name of the different complexes. इसके अलावा हमारे पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, बट दैट नोमेनक्लेचर उन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो that's all for today. Now I'll give you some questions for your test, means for your knowledge, for testing your knowledge. मैं आपको कुछ examples दूंगी and उनके name आप मुझे जरूर बताइएगा. So here are the different complexes for you. CrH2O whole 4 Cl2 NO3, CO NH3 whole 4 H2O Br NO3 whole twice, Na2 SiF6 K3 FeC2O4 whole thrice. This C2O4 is oxalate ion. This C2O4 is oxalate ion. Oxalate ion C2O4 2 negative. This is oxalate ion. PTPY. This is pyridine. PTPY whole 4 PTCl4. Cr NH3 whole 5 NCS. This NCS, it is isothiocyanate ion. It is isothiocyanate ion ZnCl4. So do these examples, and if any doubt then you can ask. So that's all for today, and I hope you can write the name of all these complexes.